Canto 1, verse number 6. अनर्थोपाशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वता संहिताम। क्या बोल रहे हैं वो? The material miseries of the living entity, which are superfluous to him, can be directly mitigated by linking the process of devotional service. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasdev compiled this Vedic literature, which in relation to the supreme truth. Anyone wants to read the purport? Srila Vyasadeva saw the all-perfect personality of Godhead. This statement suggests that the complete unit of the personality of Godhead include his parts and parcel also. He saw, therefore, his different energies, namely the internal energy and the marginal energy and the external energy. He also saw his different plenary portion and parts of the plenary portion, namely his different incarnations also, and he specially observed the unwanted miseries of the conditioned soul, who are bewildered by the external energy. And at the last, he saw the remedial measure for the conditioned soul, namely the process of the devotional services. It is a great translator science and begin with the process of hearing and chanting the names and glory, etc. of the Supreme Personality of Godhead. Revival of the dormant affection or love of Godhead does not depend on the mechanical system of hearing and chanting, but it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. When the Lord is fully satisfied with the sincere effort of the devotee, he may endow him with his loving transcendental service. But even with the prescribed forms of hearing and chanting, there is at once a mitigation of the superfluous and unwanted miseries of material existence. Such mitigation of material affection does not wait for development of the transcendental knowledge. Rather, knowledge is dependent on devotional service for the ultimate realization of the supreme truth. Thanks, Prabhu. So, अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो? हमने लास्ट टाइम में मटेरियल मिजरीज के बारे में डिस्कस किया था ना? क्या डिस्कस किया था? ये due to this external energy, the living entity, although transcendental to three modes of material nature, thinks himself as a material product and thus undergoes the reaction of material miseries. Although living entity क्या है? सुपीरियर एनर्जी का पार्ट है, लेकिन वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंडर आ जाती है. एज अ रिजल्ट वो मटेरियल मिजरीज में उसको मटेरियल मिजरीज होती हैं. वो मिजरीज हमें पता है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, हमने कई बार डिस्कस किया, राइट? तो वो मिजरीज, अब इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि वो क्या है? सुपरफ्लुअस हैं, ठीक है, विच आर सुपरफ्लुअस टू हिम. वो उसको बिलोंग नहीं करती हैं वो मिजरीज सोल को, ठीक है. और कैन बी डायरेक्टली मिटिगेटेड, उसका सोल्यूशन बता दिया उन्होंने. पिछले बार तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, आज क्या है? सोल्यूशन बता दिया है. क्या सोल्यूशन है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति करो, और भक्ति करके ये जो आपकी मटेरियल मिजरीज हैं ये सब चली जाएंगी. बट मास ऑफ द पीपल डू नॉट नो दिस. लोकस्य जानितो विद्वांस. तो ये जनरल मास ऑफ मैन अजानता, दे डू नॉट नो दिस, ठीक है. अब ये लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति करके मिजरी से छुटकारा पाया जा सकता है. अब पता नहीं है तो फिर क्या करोगे? पता लगाएंगे. कैसे पता लगवाएंगे? Therefore, learned व्यासदेव ने कंपाइल किया ये वैदिक लिटरेचर, विच इज इन रिलेशन टू द सुप्रीम ट्रूथ. अब उन्होंने, वेद व्यास ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम लिखी, ठीक है. आपको नहीं पता है कैसे करना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ो, भक्ति करो और मिजरी से छुटकारा पालो. बेसिकली ये थीम है आज का, राइट. अब भक्ति योगा बेसिकली वो बोल रहे हैं कि सारी जितनी भी सफरिंग्स हैं उसका सोल्यूशन है, उनसे बाहर निकलने का वो है, सोल्यूशन है, ठीक है. अब पहले हमें पता होना चाहिए कि भक्ति योगा क्या होती है. व्हाट इज भक्ति योगा? कोई बताएगा? प्रभु जी, भक्ति योगा यानी
जो भक्ति जो लेडर है उसमें सबसे टॉप मोस्ट, उसमें सारी अटैचमेंट नहीं होती किसी, वो प्योर ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होती है। तो फिर हम कर सकते हैं? हम तो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे नहीं है, तो हम कैसे नहीं, कर सकते हैं फिर? यानी हम हमें ऐसा बोला गया है कि हमें कर्म के साथ करना है, यानी ऐसे कर्म योगा बोला गया है, लेकिन कर्म योगा में हम क्या करते हैं कि हम फ्रूटिटी वर्क वो रखते हैं कि हाँ मैं कुछ करूंगा तो मुझे इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो हमें हम्म छोड़ना है। यानी हमें सिर्फ हम्म भगवान की भक्ति करोगे तो वो अपने आप हो जाएगा, यानी डिवोशनल सर्विस करनी है हमें। डिवोशनल सर्विस, राइट। तो बेसिकली क्या है भक्ति योगा? क्या है कि प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिससे हम इस इस मटेरियल मिजरीज के चक्र से और इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। एक और डेफिनेशन है भक्ति योगा की, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु साधु शास्त्र। जो गुरु साधु शास्त्र बोल रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बेसिकली हमें, और कुछ नहीं करना है। वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है। गुरु साधु और शास्त्र, शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवतम। गुरु जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ठीक है। साधु कौन है? जो हमारे शिक्षा गुरु हैं। राइट। तो इन तीनों, ये तीनों बोलते हैं वो फॉलो करना है। ठीक है। और इस प्रोसेस को फॉलो करके हम जो माया के कंट्रोल में हैं उससे हम निकल जाएंगे। ठीक है ना। भगवान ने क्या बोला है? भगवत गीता में बोला है ना उन्होंने 7.14 में, देवी हेश गुणामयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती दे। देवी हेश गुणामयी, जो तीनों गुणों से जो बनी हुई ये मटेरियल एनर्जी है, माया है, वो क्या है? मम माया दुरत्य, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। बहुत मुश्किल है वो ओवरकम करनी। राइट। पर वो ओवरकम कैसे हो सकती है? माया माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओगे तो माया को तरंती दे, वो इजीली आप माया को क्रॉस कर जाओगे। राइट। तो एक और डेफिनेशन क्या है भक्ति योगा की, कि भक्ति योगा बाकी जितनी भी योगा है, योगा सिस्टम है, उसमें आपका अपना खुद का कंट्रोल होता है। भक्ति योगा क्या है? भगवान की ब्लेसिंग होती है उसमें। भगवान की ब्लेसिंग खुद से इन्वॉल्व होती है। दैट इज वाई दैट इज वाई इट इज कॉल्ड भक्ति योगा। और भक्ति योगा से क्या होता है कि यू कैन कंट्रोल द लॉर्ड। यूजुअली भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं आते, राइट। अजिता बोलते हैं भगवान को। पर अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान भी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट वर्सेस में वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जिनमें हमें पता चलेगा कि डिवोटी कंट्रोल कर रहा है भगवान को। राइट। तो अब देखा जाए तो योगा योगा का मतलब क्या होता है? योगा मतलब युज, युज से बना है, टू कनेक्ट। अब टू कनेक्ट विद कृष्णा थ्रू भक्ति। सो योगा का मतलब हो गया कनेक्ट, और अब रह गया भक्ति। अब भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति योगा को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस में। तो भक्ति क्या है अगर मैं खाली भक्ति देखूं तो? हरे कृष्ण। प्रभु अपनी सारी एक्टिविटीज को हम लोग जो डबटेल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। जब हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं या कृष्णा के लिए करते हैं, तो इट इज कॉल्ड भक्ति योगा। लाइक वी आर होस्टिंग द भक्ति विक्षा प्रोग्राम, so it means we are using this house for the Krishna service, we are using car for Krishna service, we are cooking for Krishna, that is the prasadam. So that's how every activity if we connect it to Krishna. Correct. That is my understanding. No, that's correct. That's correct. So भक्ति के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है भक्ति is devotion and service. तो डिवोशन इज एक तो सर्विस है, तो सर्विंग कृष्णा, जैसे माता जी ने बोला भक्ति वृक्षा के लिए पोस्ट करना, खाना बनाना, वो सब चीजें करना। सो दैट इज सर्विस। वो तो सर्विस का एस्पेक्ट हो गया। अब डिवोशन का जो एस्पेक्ट है वो है कि कृष्णा को ध्यान में रखते हुए वो चीजें करनी, रिमेम्बरिंग कृष्णा ऑल द टाइम। राइट। तो जैसे मैं योगा ट्यूसडे को ना योगा करनी स्टार्ट करी है, तो सचिन प्रभु भी जाते हैं कभी मेरे साथ कभी कभी। तो उसमें क्या है, वो टीचर, योगा की टीचर क्या बोलती है, पहले तो वो आसन करवाती है, स्ट्रेच करवाती है ऐसे करके, कुछ उल्टे सीधे से आसन करवा के फिर वो बोलती है
डोंट फॉरगेट ब्रीदिंग, सांस लेना मत भूलो, क्योंकि हम जब ऐसे पोज में हो जाते हैं तो हम अपनी सांस पता नहीं समहाउ ऐसे होता है कि हम सांस लेना भूल जाते हैं। वो बार बार याद करवाती है, डोंट फॉरगेट ब्रीदिंग, डोंट फॉरगेट ब्रीदिंग। सो जो योगा करते हैं दैट ऑफ टू थिंग्स, स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग, राइट। तो अगर मैं ब्रीथ नहीं करूंगा और मैं खाली वो आसन करे जा रहा हूँ, स्ट्रेचिंग करे जा रहा हूँ, तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे उसके। और अगर खाली मैं सांस ले रहा हूँ और वो स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा हूँ, वो योगा नहीं कर रहा हूँ, तो तो योगा हो ही नहीं रही, बेसिकली कुछ काम तो हो नहीं रहा, सांस तो सभी ले रहे हैं, राइट। तो योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एज वेल एज ब्रीदिंग। सेम वे भक्ति योगा, जो भक्ति योगा है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस एज वेल एज रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। दोनों चीजें हैं। अब सर्विस तो हर कोई कर रहा है, इजंट इट। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, घर में आके बर्तन मांज रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, बच्चों की सर्विस कर रहे हैं। तो ये मंडेन सर्विस है, नॉर्मल सर्विस है। तो ये इसमें इसमें स्पिरिचुअल कुछ नहीं है, राइट। बड़े से बड़ा जो सबसे अमीर आदमी है वो बोलेगा मैं तो सर्व नहीं करता किसी को, पर वो भी अपना कुत्ता घुमाता है हर शाम को आके, कुत्ते की सर्विस कर रहा है वो अपने, isn't it? तो जब तक हम भगवान को नहीं लाएंगे ना बीच में, तब तक सर्विस नहीं है, तब तक वो क्या नहीं है, सॉरी, भक्ति नहीं है, ठीक है। अब सर्विस, अब खाली अगर हम बोले कि हम सर्विस कर रहे हैं, ये जो सर्विस वाली टर्म है ना, ये काफी वो कहीं उसमें सर्विस सर्विस रह जाती है और डिवोशन निकल जाती है। प्रॉब्लम ये है, प्रभुपाद ने बोला था डिवोशनल सर्विस, उसमें से डिवोशन तो धीरे धीरे ना फेड अवे होती रहती है। बहुत ही ट्रिकी है, ये ट्रैप है एक तरह का। तो वो हमें सोचना है कि भाई डिवोशन को हटाना नहीं है, हमारा फोकस हो जाता है सर्विस सर्विस सर्विस। बट हमें ये देखना है कि जो मैं सर्विस कर रहा हूँ, क्या वो सर्विस मैं अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, क्या वो सर्विस मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, या मैं वो सर्विस किसी के प्रेशर में तो नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा भाई इसने मुझे बोला था इसलिए कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला इसलिए कर रहा हूँ, इजंट इट। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है और फिर हमें सर्विस करनी है, इजंट इट। नहीं तो करते रहो, देयर इज नो हार्म। फ्रेंड के लिए सर्विस करना है, किसी के लिए सर्व करना है, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि वो क्या है, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी वो, जब तक उसमें कृष्णा नहीं आएगा। जैसे अब एग्जाम्पल, अब उसमें कृष्णा कैसे ऐड करेंगे, जब हम अपने इमोशंस डालेंगे उस सर्विस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भक्ति वृक्षा के लिए, अगर हम खाना, फॉर एग्जाम्पल भक्ति वृक्षा के लिए, अब वो खाना बना दिया, दे दिया, खत्म हो गया। पर अगर मैं उसमें इमोशन डाल दूं कि तो मैं भक्ति वृक्षा के लिए खाना बना रही हूँ, वो मैं कृष्णा के लिए बना रही हूँ, या मैं वो, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि वो कृष्णा एक्सेप्ट करें, और कृष्णा के एक्सेप्ट करने के बाद डिवोटीज उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, और उससे क्या हो कि मुझे और इंस्पिरेशन मिले भगवान की सर्विस करने की, और सर्विस मिले, इस मूड से अगर मैं कर रहा हूँ करूंगा, तो वो क्या 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 होगी, वो भक्ति होगा, बिकॉज उसमें सर्विस भी थी और मेरे इमोशंस, मेरी प्रेयर्स भी जुड़ गई। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सारे भागवतम सुनने आते हैं, भागवतम करने, कथा करने आते हैं, तो भागवतम तो चलती रहती है, मतलब यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, पर वहां से सुनते रहो। पर अब सुनने का पर्पस क्या है, हमें वो होना चाहिए कि भगवान, मैं भागवतम पढ़ने जा रहा हूँ, मैं भागवतम बोलने जा रहा हूँ, तो कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं सुन रहा हूँ, मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकूं, मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं, ठीक है, मैं और लोगों को गाइड कर सकूं। सो जब ये प्रेयर जुड़ जाती है, तो वो क्या बन जाती है, डिवोशनल सर्विस, वो क्या बन जाती है, भक्ति योगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। तो ठीक है, और इसको मैंने देखा है कि जो एग्जॉल्टेड कई डिवोटीज हैं, जैसे ओजस्वी प्रभु, मैंने देखा है किचन में वो करते हैं सर्विस, तो हमेशा वो अंदर अंदर ना उनके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीप्स रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। अब मैं जब क्लास देनी होती है तो तब हालत टाइट होती है, हवा टाइट होती है, पता नहीं होता क्या बोलना है जाके,
तो मैं उस टाइम पे मैं प्रे करता हूँ, है ना। भागवतम से पहले भी सब लोग प्रे हैं, ओम ज्ञान राइट एंड ऑल, वो प्रेयर इन्वोकेशन करते हैं ताकि मैं सही वर्ड्स बोल सकूं, राइट, कुछ मैं गलत ना बोल दूं या मेरे वर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग हो, तो उससे पहले हम प्रे करते हैं। बट यही जब मैं किचन में जाता हूँ सर्विस करने ट्यूसडे मॉर्निंग, तो ध्यान में ही नहीं होते भगवान, मैं जाता हूँ जाके सब्जी काटने लग जाता हूँ, चलो वो क्या है, वो खाली सर्विस है विदाउट इमोशंस। बट अभी मैंने स्टार्ट किया है कि मैं किचन घुसने से पहले भी मैं थोड़ा भगवान का ध्यान करता हूँ कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, राइट। मुझे कुछ पॉइंट You want to add something? Yeah, before doing something, think of these three questions. Why am I doing it? What will be my results? Will I have success? Very good. Thank you. Thank you for sharing. ठीक है। क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि सर्वे ये, हाँ, हमें रिमेम्बरेंस, कृष्णा की रिमेम्बरेंस करने के लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पल पल पे, एवरी टाइम, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, वो काम स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा अगर हम कृष्णा को ध्यान में रख के कर रहे हैं, राइट। तो ये हैबिट होनी चाहिए हमारी। और मैंने ओजस्वी प्रभु को पहले भी देखा है, कई बार वो ऐसे ही जाते हुए नॉर्मल बातचीत कर रहे होंगे, बीच में वो बोल देंगे, हरे कृष्णा मत बोलने लग जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि डिवोटीज के पास फीडबैक होता है, दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैव, कि जब कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी काम करने को नहीं है, फीडबैक में अपने आप हाथ चला जाए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। वो फीडबैक क्या है, वो तुम्हें एक फिजिकल चीज है जो तुम्हें याद दिलाती है कि भगवान का नाम लेना है, वो भी हम कर सकते हैं। बट अब हर जगह अगर नहीं पॉसिबल, तो बेस्ट है कि हम अपने दिमाग में हमेशा भगवान का स्मरणम रखें। उससे क्या होगा कि हमें हमारी आदत बनी रहेगी, तो जो भी हम काम करेंगे वो भक्ति योगा बन जाएगी। रिमेम्बर, रिमेम्बरेंस एंड सर्विस, जब ये दोनों चीजें होंगी, राइट। तो अब ये इस चीज का क्या है, जैसे उसने बोला कि लोगों को नहीं पता, इसमें लोग से अजानत, तो लोगों को नहीं पता कि ये करने से वो होगा, भक्ति योगा करने से जितनी भी मटेरियल मिजरीज हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये टॉपिक है ना, कि भक्ति करने से मटेरियल मिजरीज दूर हो जाएंगी और लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, पीपल डोंट नो दिस। तो लोगों को नहीं पता, तो इसलिए क्या करो, उनको एजुकेट करो। एजुकेट कैसे करो, भागवतम से। तो भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के 3 पर्पस हैं, राइट। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना, प्यार का इजहार करना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ। वेरी हाईएस्ट स्टैंडर्ड आई वुड से, ठीक है ना। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम भागवतम क्यों पढ़ते हो, मेरा आंसर होगा, हाँ जी क्लास देनी है जी, या एग्जाम है मेरा, इसलिए इसलिए पढ़ रहा हूँ, राइट। ये मैंने गौरांग दर्शन प्रभु से पूछा था। मैंने कहा प्रभु, अभी जब आए थे वो मेलबर्न में, मैंने वो कुछ टॉपिक था, तो उसमें मैंने पूछा था, मैंने कहा प्रभु मैं तो तभी पढ़ पाता हूँ, उसमें हाँ ये था ना रीडिंग स्क्रिप्चर्स, तो उसमें था कि स्क्रिप्चर्स पढ़ने क्यों चाहिए और वो सब। तो मैंने कहा प्रभु मैं तो तभी पढ़ पाता हूँ जब मेरा एग्जाम होता है या जब मुझे क्लास देनी होती है, तो क्या ये सही है? तो मैंने बोला कि इट्स नॉट बैड कि एटलीस्ट तुम पढ़ रहे हो, बट दैट इज नॉट द, आई मीन दिस इज नॉट हाउ वी शुड डू, बट एट द सेम टाइम इट इज गुड कि तुम, अब ये जो 1 घंटा हम 7 से 8 तक हम कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बिना तैयारी करे आके बैठ जाऊं, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम 100 लोगों को एड्रेस कर रहे हो 1 घंटे के लिए, तो तुम 1 घंटा नहीं बर्बाद कर रहे हो, तुम 100 मैन आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए तैयारी करके देना, खुद से रिसर्च करना, पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ताकि अब जो 6-7 लोग हैं, तो ये 7 घंटे हैं ये टोटल जो जा रहे हैं, 1 घंटा नहीं जा रहा है, तो दैट इज वेरी गुड, राइट। बट एक्चुअल मेरे में क्या होना चाहिए कि मेरे को कृष्णा को प्लीज करना है, आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, दैट शुड बी दैट इज द पर्पस, वन ऑफ द पर्पस। तो 3 पर्पसेस में से, ठीक है। तो सेकंड पर्पस क्या है हमारे जैसे लोगों के लिए, कि जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में, उनको भगवान के बारे में पता लगवाना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के बारे में हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम से,
ठीक है, वो भागवतम क्या बोल रहे हैं, व्यासदेव बोल रहे हैं नलायको पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। जो भी ये जो मटेरियल मिजरीज जो हैं, जो ये दुख हैं इस संसार के, ठीक है, उनसे तुम निकल जाओगे। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कृष्णा। ठीक है, पहला पर्पस क्या था, ग्लोरीफाई कृष्णा। सेकंड पर्पस क्या हो गया भागवतम का, टू नो, टू नो अबाउट कृष्णा, इंफॉर्मेशन अबाउट कृष्णा। ठीक है, और थर्ड इज प्रोसेस। अब जानने को भी मिल गया, अब तरीका क्या है भगवान को भक्ति योगा करने का, प्रोसेस क्या है, कैसे करें, राइट। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग उसमें बैठे हैं, छोटी सी कश्ती में बैठे हैं, बोट में हैं, और उसमें छेद हो गया। अब वो छेद हो गया, अभी उनको नहीं पता चल रहा है, पर उसमें से धीरे धीरे पानी अंदर जा रहा है, पर उन लोगों को नहीं पता है। इतने में क्या हुआ, एक बड़ा शिप आया वहां पे। उस शिप ने देख लिया कि ये इसमें छेद हुआ है, तो शिप वाले बंदा बोल रहा है कि आजा बेटा, इधर आ जाओ, शिप में आ जाओ, और मेरा शिप देखो कितना बड़ा शिप है, और ये सब इसमें इतनी स्टोरीज हैं, इसमें ये सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, खाने पीने को अच्छा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने शिप को ग्लोरीफाई कर रहा है कि देखो आओ यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। वो बोलेंगे बंदे बोट वाले, नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे भी बढ़िया चल रहा है, हम नहीं आएंगे, हमारा यहाँ पे सही है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो बताएगा कि भाई देखो, तुम्हारी बोट में होल है, छेद है, अब आ जाओ। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन दी उसने उसको, ठीक है, कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, छेद से भरा हुआ है। कोई कोई है यहाँ पे जो बोल सकता है कि वो कभी मरेगा नहीं? सब मरेंगे यहाँ पे। ये ये सब क्या है, ये होल्स हैं मटेरियल लाइफ में। कौन कह सकता है कि मैं हमेशा सुखी हूँ, या सुखी रहूंगा, या सुखी रहा हूँ? नो वन कैन से दैट। तो ये होल्स हैं, ये होल्स के बारे में हमें पता नहीं रहता, पर हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि यहाँ ये होल हैं, वो जब भागवतम पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा अच्छा, वो कहेगा अच्छा होल है, तो फिर वो पूछेगा अच्छा मैं कैसे निकलूं इस बोट में से। फिर वो फिर वो उसकी तरफ रस्सी फेंकेगा, या कुछ ब्रिज बनाएगा, या कुछ करेगा, राइट। दिस इज हाउ, फिर वो कहेगा कि अच्छा, फिर वो रस्सी पकड़ के वापस उसमें शिप में आ जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस। सो ये 3 पर्पस हैं भागवतम पढ़ने के। ये याद याद होने चाहिए हमें। पर हमें, हमारी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कि हम कितने बड़े उसमें हैं, कितने बड़े हम उसमें मटेरियल वर्ल्ड, कितना बड़ा वो जाल में फंसे हुए हैं हम एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है, बट हमें पता नहीं है, हमें लग रहा है कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ठीक है, तो ये है, ये है पर्पस भागवतम का, तो इसीलिए उन्होंने भागवतम लिखी है। अब यहाँ पे एक प्रभुपाद बड़ा अच्छा है, रिवाइव द गवर्नमेंट अफेक्शन और लव फॉर द गॉड हेड डज नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं क्या करता हूँ, मैकेनिकल है मेरी चैंटिंग तो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला करनी है, तो वो हो गई, वो मैकेनिकल है। हियरिंग है, मैकेनिकल है, एवरीथिंग इज मैकेनिकल। तो वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मैकेनिकल हियरिंग और चैंटिंग से भगवान भगवान का प्यार नहीं जागने वाला है। ठीक है, कैसे जागेगा भगवान का प्यार? wholly solely depend on the causeless mercy of the Lord. Very very important. ठीक है, तो भक्ति योगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना कि भक्ति योगा क्या है। बाकी जितने भी योगा के सिस्टम्स है ना, अष्टांग योगा हो गई, ध्यान योगा हो गई, जितने भी पुराने सिस्टम है, ध्यान योगा में क्या था, तुम्हारे तुम्हारे हाथ में ही है, एवरी द कंट्रोल इज इन योर हैंड। ठीक है, तुम बैठ के कर रहे हो, 10,000 साल तपस्या कर ली हिरण्यकश्यप ने, उसके बाद वरदान मांग लिए, किसी और का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं था। बट भक्ति योगा में क्या है, इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द थिंग्स, इट इज अबाउट टेकिंग द शेल्टर। भगवान का शेल्टर लेना है इसमें, उनकी कॉजलेस मर्सी, भगवान की कॉजलेस मर्सी को इन्वोक करना है। ठीक है, तो भगवान का शेल्टर लेने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। और वही मैंने जैसे ऊपर 7.14 में बताया ना, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में एताम तरंती थे। तो मेरा जो शेल्टर लेगा, माया उसको कुछ नहीं बोलेगी, राइट। तो अब शेल्टर भगवान का शेल्टर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है ना हमारी, उसको गिव अप करना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें उसको लेट गो करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया ना योगा, वो योगा वाली टीचर सब कुछ करवाने के बाद एंड में वो शवासन करवाती है, मेरा फेवरेट है वो, उसमें बंदा आराम से लेट जाता है। राइट, उस शवासन में वो क्या बोलती है, एकदम लाइट्स ऑफ कर देती है और हम सब लेट जाते हैं और ऐसे करके एकदम, और वो एक एक बॉडी पार्ट का ना वो नाम लेती है, लेट गो एवरीथिंग, रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर नीज, और रिलैक्स योर आईब्रोज, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर शोल्डर्स। ठीक है, लेट गो एनीथिंग यू आर होल्डिंग, सो लेट गो। और वो एक्चुअली जब एक एक पार्ट बोलती है, मैं एक्चुअली एक एक बॉडी का पार्ट आई रियलाइज कि यार वो, हाँ वो उसमें टाइटनेस है, और जब मैं उसको रियलाइज करता हूँ मैं छोड़ता हूँ उसको। उस दिन मुरजन प्रभु भी यही बोल रहे थे परसों की क्लास में, राइट, कल कल की क्लास में। तो इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो मैं क्या किसी और चीज को पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए लेट गो। जब तक मैंने मटेरियल चीजों को पकड़ा हुआ है मैं कृष्णा को नहीं पकड़ पाऊंगा। मुझे मटेरियल चीजों को छोड़ना पड़ेगा कृष्णा को पकड़ने के लिए। मुझे कृष्णा की शरण में जाना पड़ेगा, राइट। तो हमारा क्या है कि किसी ने मेरे को ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, एक एक साल, दो दो साल पकड़ के रखते हैं। वही बुरजन प्रभु पूछ रहे थे ना कि बताओ तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है? तो विराज बोलता है कि नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती। तो कहते होती है, तो फिर कहते तुम भूल जाते हो? कहता नहीं, भूलता नहीं हूँ। कहते कब तक नहीं भूलते? कहता कल तक, एक दिन तक याद रखता हूँ। तो कहते एक दिन बाद भूल जाते हो? कहते हाँ। कहते क्यों भूल जाते हो? बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यही मटेरियल मिजरी का कारण है। तो इनको अगर हम छोड़ देंगे और कृष्णा को पकड़ लेंगे तो ये मटेरियल मिजरीज अपने आप चली जाएंगी। बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट है भक्ति का। राइट। तो ये क्या है, भगवान की कॉजलेस मर्सी है हम पे। जैसे दामोदर, हम दामोदर अष्टकम में भी है ना, कि एक तो हमने अपना पार्ट कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चैंटिंग और हियरिंग नहीं करनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अवर वे टू शो कृष्णा के वी आर सिंसियर। हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया, पर उसके बाद वो जो रस्सी जो है जिससे वो दामोदर को बांध रहे थे, दामोदर से बांध रहे थे कृष्णा को, वो हमेशा दो उंगली छोटी रह जाती थी। वो एक उंगली क्या है, तुम्हारी अपनी एफर्ट, और दूसरी उंगली क्या है, कृष्णा की मर्सी। ठीक है ना। तो वो कृष्णा की मर्सी जब तक नहीं होगी, जब तक कृष्णा की कॉजलेस मर्सी नहीं होगी, तब तक नहीं हो पाएगा। तो यही ब्यूटी है भक्ति योगा की, राइट। तो इसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी अकबर और बीरबल की। तो बीरबल बोलता है अकबर को कि अकबर आप तो भगवान से भी ज्यादा ग्रेट हो। अकबर बड़ा खुश होता है कि वाह, मुझे भगवान से भी ग्रेट बोल दिया। अंदर अंदर तो बड़ा खुश हुआ, बाहर से पर वो हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है। कहता अच्छा बीरबल, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कैसे, एक्सप्लेन करो, कैसे मैं भगवान से बड़ा कैसे? अब उसको था कि अब ये मेरी और बड़ाई करेगा, मेरी और प्रेज करेगा, सब लोग दरबार में सुनेंगे। तो बीरबल बोलता है जहां पना, एक बात बताइए, अगर आपने कोई रूल निकाला है किंगडम में अपनी, है ना, कुछ आदेश निकाला है और कोई उसको फॉलो नहीं करता, या कोई आपके अगेंस्ट जाता है, या जो आपकी बात नहीं मानता, तो आप क्या करोगे? कहते मैं उसको इस देश से निकाल दूंगा, मैं उसे इस किंगडम से निकाल दूंगा, मैं सब उसको बाहर कर दूंगा। कहता देखो, भगवान ये नहीं करते, जो आप कर सकते हो वो भगवान नहीं करते। बेसिकली भगवान की कॉजलेस मर्सी है कि हमारे इतने इतने ज्यादा अलग हो जाने पे, उनको भूल जाने पर भी भगवान हमें नहीं भूलते। वो अपनी मर्सी हमें देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो उनकी मर्सी के गेट्स ऑलवेज खुले हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे हमारे एंड से वो इनिशिएटिव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा इनिशिएटिव हमारे एंड से होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, क्या बोल रहे हैं वो, even if with the prescribed forms of hearing and chanting, there is at once mitigation of the superfluous and unwanted material miseries। जैसे हम चैंटिंग और ये हियरिंग स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मटेरियल मिजरीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है। अगर आप सोचो
हम एज अ फादर या एज अ मदर हम अपने बच्चे को नहीं देख सकते जब वो सफर कर रहा होता है, राइट? जब वो बुखार में हो या उसको कुछ हो रहा हो, तो सोचो जो परमपिता भगवान परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हैं, वो कैसे हमें यहाँ पे देख सकते हैं? नेवर। इसीलिए वो हमेशा, मैंने पहले भी बोला था, अर्जुन सका प्रभु बोलते हैं। अरे वो जैसे वो शाहरुख खान बोलता है ना, पलट पलट पलट, ऐसे बाएं करके हीरोइन को, ठीक है ना? फिर ऐसे ही वो तो खड़े वेट कर रहे हैं यार कि पलट पलट, मेरी तरफ पलट। हम पलट ही नहीं रहे हैं। हमारे जैसे हम पलटे, हम चले जाएंगे वहां पे वापस। तो बस वो पलटने की देर है। Alright? तो इसीलिए उन्होंने भेजा व्यासदेव को कि ये सारे अपनी कॉजलेस मर्सी से उन्होंने क्या भेजा, एक तो व्यासदेव को भेजा कि ये लिटरेचर लिखें, राइट? और उसमें क्या वर्ड बोला उन्होंने? भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योगा करके अधोक्षजे। अधोक्षजे का मतलब क्या है? इसका एक बड़ा अच्छा पास टाइम है अधोक्षजे का। एक तो प्रभुपाद ने इसमें ट्रांसलेशन करी है कि अनटू द ट्रांसीडेंस, ठीक है? अधोक्षजे मतलब ट्रांसीडेंटल। अब अधोक्षजे कृष्णा का नाम है एक्चुअली। तो ये कृष्णा का नाम कैसे पड़ा? ये कृष्णा का नाम रखा था अधोक्षजे नंद महाराज ने, उनके पिताजी ने। क्या हुआ था, जब वो 80 दिन के हुए थे तो वो यशोदा माई ने उनको ऐसे लेफ्ट साइड पे ऐसे लेटा दिया, सो गए वो। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब वो गए उनके रूम में, उन्होंने वो पलटी मार ली खुद से। पलटी मार के वो राइट साइड पे सोने लग गए। तो बहुत सब खुश हुए कि कृष्णा ने पलटी मार ली, बच्चे ने, 80 दिनों के बच्चे ने खुद से करवट ले ली, ठीक है? तो उन्होंने कहा चलो भाई सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन चलने लग गई, हवन हो गया, चैंटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कृष्णा से ही यशोदा माई की गोदी में थे और वो सब कुछ चल रहा था सेलिब्रेशन। तो कृष्णा को फिर से नींद आ रही थी। तो यशोदा माई ने सोचा कि इसकी नींद डिस्टर्ब होगी यहाँ पे अगर मेरे पास रहेगा। तो उन्होंने उसको क्या किया, शटका के अंदर रख दिया। शटका इज द बुलक कार्ट। तो वो कार्ट एक पुरानी पड़ी थी वहां पे, उन्होंने उसके अंदर, उसके नीचे उसको रख दिया कृष्णा को। तो जब रख दिया तो वहां पे उस टाइम पे शटकासुर नाम का एक राक्षस था। तो वो एक्चुअली क्या था, वो घोस्ट था, उसकी बॉडी नहीं थी। तो वो घोस्ट जो था वो शटका के ऊपर, उस बुलक कार्ट के ऊपर था। तब उसको शटकासुर को मारा था उन्होंने। तो वो अब कृष्णा जो है वो नीचे लेटे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि यार ये सेलिब्रेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और मेरे को यहाँ कोने में, यहाँ पे इन्होंने लटका दिया है, यहाँ पे बिठा दिया है, यहाँ पे नीचे लिटा दिया है, और कोई मुझे पूछ नहीं रहा। मैं जो जगत का वो सबसे बड़ा पावरफुल जगदीश हूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुझे यहाँ पे अकेला हूँ मैं। और वो रोने लगे, और रोने की आवाज भी नहीं सुन रही है क्योंकि सेलिब्रेशन चल रही है वहां पे। तो उनको आया गुस्सा, बोल रहे हैं जो बालकृष्ण थे उनको आया गुस्सा। उन्होंने क्या किया, अपना ऐसे पैर ऊपर मारा और वो जो शटकासुर था जो उसके उसके ऊपर बैठा हुआ था, बुलक काट के ऊपर, वो सारा टूट गया, सब कुछ टूट गया। वो जो पूरा काट था वो टूट गया, और जो उसको भी थी तो वो मुक्ति मिल गई। तो उसको शाप मिला हुआ था पहले, उसको जो घोस्ट बना हुआ था शटकासुर को, तो उसकी भी मुक्ति हो गई। और जो जब टूट गया तो सब लोग आए, फिर उसके बाद सब लोग आए तो देखा उन्होंने कि कृष्णा जो थे वो उसके अंदर थे, व्हील के अंदर, व्हील के अंदर वो पड़े हुए थे। तो उन्होंने व्हील उठाया तो अंदर से मतलब कृष्णा वहां पे सेफ एंड साउंड थे। तो तब से उनका नाम अधोक्षजा पड़ा। अध मीन्स अंडर, और अक्षज का मतलब संस्कृत में होता है व्हील। तो वो उस व्हील के अंडर थे, अधोक्षजा। तब से उनका नाम अधोक्षजा पड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि जो कृष्णा की भक्ति योगा करता है, किसकी करता है भक्ति योगा? कृष्णा की, क्योंकि और कोई है नहीं जिसकी तुम भक्ति कर सकते हो। भक्ति सिर्फ कृष्णा की हो सकती है, राइट? तो जब हम भक्ति करेंगे तो तब क्या होगा, जो है वो चली जाएंगी एट वंस। इसमें लिखा है एट वंस द मिटिगेशन ऑफ द सुपरफ्लुअस अनवांटेड मटेरियल्स ऑफ द मटेरियल मिजरीज ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस, and such mitigation of material affection does not wait for the development of the transcendental knowledge। वो किसी की वेट नहीं करता। जैसे ही आप भक्ति स्टार्ट करते हो वैसे ही आपकी जो है
वो मिजरीज जानी शुरू हो जाती हैं। अगर आप देखो उसमें विष्णु प्रेश्वर प्रभु ने लास्ट क्लास में नहीं, पहले बताया था कि जैसे ही हम भक्ति स्टार्ट करते हैं 2 सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कौन से? क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि क्या होती है? क्लेश मतलब जितनी भी मिजरीज हैं उनकी अग्नि, उनकी जो उनको जला के भस्म कर देती है जैसे ही हम भक्ति स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और क्या होता है सेकंड सिम्टम के? शुभदा। अब वो मिजरीज चली गई, मिजरीज जाना इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पीनेस आ गई। मिजरीज, अगर मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। ठीक है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई मजा भी नहीं आ रहा। बट भक्ति क्या करती है उसके बाद? पहले तो वो मिजरीज को हटाती है, ठीक है, दुख हटाती है तुम्हारी लाइफ से, और उसके बाद वो क्या देती है? शुभदा भी देती है, तुम्हें ब्लिस भी देती है। राइट। तो ये बात जनरली डाइजेस्ट नहीं होती कि यार मेरे को प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में, मेरे साथ कुछ हो गया है, मेरी मेरी टांग टूट गई या कुछ हो गया, और तुम बोल रहे हो यार भक्ति कर लो। भक्ति करने से क्या होगा? भक्ति करने से मेरी टांग ठीक हो जाएगी? भक्ति करने से मेरा क्या, मेरे अगर मेरे रिलेशनशिप खराब है किसी से तो क्या मेरे वो ठीक हो जाएंगे? ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसकी, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट वर्स में। राइट। तो नेक्स्ट वर्स हम कर सकते हैं, तो अभी पढ़े 18 मिनट, पर वो पूरा शायद हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर। हरे कृष्ण। भैया मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु लास्ट वाले वर्स में। हाँ हाँ हाँ, बताओ। उसमें जो ये शायद आई थिंक लास्ट थर्ड लाइन थी पॉपकोट में, नहीं ये वाला जो भी आपने लास्ट वाला किया था ना, हाँ ये वाला, बट इवन विद द प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रभु यहाँ पे जो प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, बट इवन विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, जो इससे पहले अभी आपने एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाली लाइंस में कि हमारी मैकेनिकल हियरिंग और उससे नहीं होगा, है ना, भगवान की कॉजलेस मर्सी से होगा। बट वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि वो हमारा एफर्ट है और भगवान की मर्सी। तो यहाँ पे जो ये प्रिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग प्रभुपाद ने बोला है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? हाँ, अभी क्या लिख रहे हैं? वही मैकेनिकल जो हम कर रहे हैं। करेक्ट। अब बिल्कुल आपकी मतलब अच्छा पॉइंट है। उसको रेफर कर रहे हैं। हाँ, दोबारा पढ़ते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ से वो क्या कह रहे हैं कि द रिवाइवल ऑफ द डोरमेंट अफेक्शन, हमारे सबके अंदर क्या है? भक्ति तो हम सबके अंदर है, भगवान का प्यार हम सबके अंदर है, हमें पता नहीं है कि है, वो डोरमेंट है, वो सोया हुआ है। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, वो बच्चा क्या है? वो ऑलरेडी उसको चलना आता है, ऐसा नहीं है, राइट, उसको चलना ऑलरेडी आता है, बट हम क्या करते हैं? बच्चे को चलना सिखाते हैं। बट हम क्या उसको उड़ना सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं। अब मैं कहूँ कि चल बच्चे उड़, वो कभी नहीं उड़ पाएगा, ठीक है, पर वो चल पाएगा। कैसे चल पाएगा? ये मत सोचो कि आपने चलाया उसको, वो चलने की जो प्रवृत्ति थी वो ऑलरेडी उसके अंदर थी। हमने क्या किया? उसको जस्ट उसको जगाया, रिवाइवल किया उसका। ऐसे ही भक्ति जो है, भगवान के लिए जो प्रेम है, वो हम सबके अंदर है, ठीक है, पर उसको जगा, बस सोया हुआ है वो। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं जागता है, खाली मैं हियरिंग और चैंटिंग करने लग जाऊंगा उससे नहीं जागेगा। वो कैसे जागेगा? जब भगवान की मर्सी होगी, when the Lord is fully satisfied, जब भगवान पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब हम हियरिंग चैंटिंग चाहे मैकेनिकली है वो करे जाएंगे ना, तो भगवान क्या देखेंगे? सिंसियर एफर्ट्स। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो रोज बंदा सुबह उठ के 16 माला कर रहा है, ये रोज बंदा हियरिंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी सिंसियर एफर्ट्स देख के क्या होगा? वो क्या दे देंगे? अपनी ट्रांसेंडेंटल सर्विस उसको दे देंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? बट इवन विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग देयर इज एट वंस मिटिगेशन। अब ये तो ट्रांसेंडेंटल सर्विस की बात हो रही है कि जब भगवान खुश हो गए, भगवान की मर्सी आ गई, भगवान खुश हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उसको ट्रांसेंडेंटल सर्विस दे दी, अपनी गोलोक वृंदावन में उसको जगह दे दी, वहां पे उसको सर्विस दे दी। पर हमारे जैसे जो लोग हैं, जिनकी अभी मैकेनिकली चल रही है, ठीक है, अभी वो मर्सी नहीं मिली है, बट वो ये वाली मर्सी नहीं मिली है कि हम ट्रांसेंडेंटल सर्विस कर लें। बट कौन सी सर्विस हमें हमें कौन सी वो मिल गई है? ब्लेसिंग कौन सी वो मिल गई है? भगवान की मर्सी कि हमारे शुभदा और क्लेशाग्नि ये चले गए।
ठीक है, तो एट वंस द मिटिगेशन ऑफ अनवांटेड मिजरीज, तो अनवांटेड मिजरीज जो है वो चली जाती हैं। भगवान की जो ट्रांसीडेंटल सर्विस है उसमें अभी टाइम है, बट जैसे हमने चैंटिंग माला उठाई और हियरिंग करी तो क्या हुआ, ये वाली चीज हमारी चली गई, क्लेशाग्नि और शुभदा, ये चीज हो गई। इज हाँ दैट प्रभु, क्लियर हो गया प्रभु, हाँ पॉइंट क्लियर हो गया प्रभु। एक और पॉइंट जो भी आपने बोला था कि 3 पर्पस क्या है श्रीमद् भागवतम रीड करने के? हाँ, फर्स्ट तो भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान को सेकंड हाँ, भगवान को ग्लोरीफाई करना, ठीक है, और दूसरा क्या था कि इंफॉर्मेशन, हाँ, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गेटिंग कृष्णा। इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, ओके भगवान के पास जाने का पता चल गया मेरे को, सब कुछ ओके पता चल गया, बट शिप शिप वाली एग्जांपल थी ना, तो हमें ये पता चल गया कि शिप में शिप बढ़िया है और मेरी बोट में छेद हैं, पर वहां जाना कैसे है, प्रोसेस किया जाने का, ये 3 चीजें, राइट। तो ये याद हम ये ओके करते प्रभु, रहेंगे। थैंक यू। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट वर्स स्टार्ट कर लेते हैं, आई डोंट थिंक वो फिनिश हो पाएगा। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये काफी बड़ा है, इफ यू सी, ये तो परपोर्ट भी पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। एनी हाउ विल स्टार्ट विद, देखते हैं। तो अभी ये वर्स क्या करेगा, प्रैक्टिकली बताएगा हमें। ये तो मैंने ऐसे बोल दिया हवा में कि यार भक्ति कर लो यार, चलो तुम बीमार हो, अच्छा कोई नहीं, भक्ति कर लो, ठीक हो जाओगे उससे। अरे बंदा यार ये कैसे, ये कोई वो थोड़े ना है, ऐसे कैसे। तो अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे कि वो जो मटेरियल मिजरीज हैं वो कैसे जाएंगी। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. क्लेश अग्नि, क्लेश की जो अग्नि हमारे अंदर भभक रही है, उसको क्या करेगी, एकदम से खत्म कर देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। ठीक है, और क्या होगा, भगवान के लिए जो सोया हुआ बीज है ना हम सबके अंदर भक्ति का, वो फूट जाएगा। कैसे फूटेगा वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब भक्ति कर रहे हैं हम, तो भक्ति करके हमें पता क्या है, गोल क्या है भक्ति का, टू गो बैक टू गॉड हेड। पर बाय प्रोडक्ट भी है, बाय प्रोडक्ट क्या है, शोक मोह भया, शोक मोह और भय, इन सबसे छुटकारा, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये हमें दिखने भी चाहिए, हमें जरूरी है, क्यों, ताकि हमें थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलती जाए। अब बोलो यार भक्ति कर ले तू, तेरे को मैं वहां ले जाऊंगा, अरे यार बंदा कहता है किसने देखा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाँ, कौन कौन पहुंचेगा, क्या होगा, किसी को क्या पता, तुम बोल रहे हो भक्ति कर लो। तो उसको क्या मिलेगा, जब उसको धीरे धीरे थोड़ा रिजल्ट्स दिखेंगे ना, तब उसे लगेगा अरे यार प्रोसेस तो सही है। ठीक है, अभी उसको मटेरियल बेनिफिट्स ही दिखने लग जाएंगे। क्या होगा, शोक, शोक क्या होता है, शोक इज लेमेंटेशन, पास्ट, पास्ट में होता है। ठीक है, कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाँ भगवान मैं ही मिला था तुझे ये सब करने के लिए। हाँ, ये कई बार ये क्वेश्चन आते हैं ना हमारे माइंड में, या उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जो पास्ट में जो चीज हुई, वो चीज, उसको क्या बोलते हैं, शोक। फिर नेक्स्ट क्या है, मोह। मोह क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है कि जो चीज सही है वो गलत लगती है, जो गलत है वो सही लगती है, इजंट इट। तो ये है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन होती है, पास्ट प्रेजेंट। और फियरफुलनेस क्या है, फ्यूचर, इनसिक्योरिटीज। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब बूढ़ा होके पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों का पता नहीं क्या होगा, वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो गलत कंपनी में तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है, वो अच्छे बनेंगे, क्या करेंगे, भक्ति करेंगे नहीं करेंगे।
मेरा क्या होगा बुढ़ापे में, मैं अपने बच्चों के साथ रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा। तो ये तीन तरह के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, शोक मोह भया, तो इन तीनों से हमें छुटकारा मिलता है। क्या करने से? भागवतम पढ़ने से। और ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है। अब बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे फैक्ट्रीज में होता है ना, कि फैक्ट्री बनाती कुछ है, पेट्रोलियम फैक्ट्री है, तो उसके आगे वो जेली, वो पेट्रोलियम जेली और वो सब बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो उससे भी वो उससे प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्चुअल फायदा नहीं है भक्ति का, ये तो जस्ट ऐसे फ्री में हमें मिल गया, ठीक है। और वो मिलने जरूरी है हमें, क्योंकि इससे हमारा क्या है, और मोटिवेशन मिलती है भक्ति करने की। तो ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं। अब प्रैक्टिकल रीजन है ये। और अब अगर आप बोलोगे यार मुझे तो जल्दी जल्दी चाहिए ये सब कुछ, बहुत जल्दी चाहिए, और मुझे पता चल गया है कि भागवतम पढ़ने से ये तीन चीजों का नाश हो जाता है, शोक मोह और भया का, तो मुझे ये जल्दी करना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं, पहला चीज तो क्या है कि मैं भागवतम पढूं, ये तो फर्स्ट ग्रेड है। इससे ऊपर क्या है कि मैं और लोगों को भी लेके आऊं भागवतम सुनने के लिए, तो उससे क्या होगा, मेरी और प्रोग्रेस होगी। मैं बताऊंगा अरे यार देखा, ये भागवतम सुनो, अरे भागवतम सुनो, इसका बहुत फायदा है। तो और लोग आएंगे, उससे और फायदा होगा। फिर थर्ड लेवल क्या है, आप खुद से भागवतम बोलो, खुद से लोगों को जाके बोलो कि अच्छा मैंने ये सुना था क्लास में, तुझे पता है ये क्या है, फिर या उससे पूछो कि हाँ। फोर्थ क्या है, ये थर्ड ग्रेड है कि खुद से भागवतम बोलो। फोर्थ क्या है, किसी और को बोलो भागवतम बोलने के लिए। किसी और को अगर आप बोल रहे हो कि तू भागवतम बोल, वो फोर्थ है, उसका और फायदा है। जैसे अब आप, अगर आप लोगों की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, राइट, अगर आप लोग ना हो तो मैं किसको बोलूंगा? सो यू आर द टॉप मोस्ट, यू आर मेकिंग मी स्पीक द भागवतम, इजंट इट? तो ये जो ग्रेड्स हैं, इससे क्या होगा, बहुत जल्दी ये चीजें चली जाएंगी, शोक मोह और भया, राइट। तो हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी जो है ना, वो इन सब चीजों में जा रही है, शोक मोह और भय में। तो जब हम हमारी जो मेंटल, हम जब चीजें भगवान में लगाएंगे ना, तो ये चीजें अपने आप बाहर हो जाएंगी। जैसे प्रभुपाद देते हैं ना एग्जाम्पल, कि अगर इंक की बॉटल है, उसको मैंने इंक को खाली करना है, तो क्या करूंगा, मैं ऊपर नल चला दूंगा, तो नल चलाता रहूंगा, उसको खुले नल के अंदर छोड़ दूंगा, तो इंक क्या है, थोड़ी देर बाद वो सब बाहर निकल जाएगी। तो शोक मोह भय सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ भगवान का प्यार, राइट। और इसकी एक और, मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको या चलो मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, वो स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। तो मैं अपनी रियलाइजेशन शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम में, कि इसकी प्रैक्टिकल बेनिफिट जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जितने भी मेरे थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि मैं कैसे इन चीज़ों से, सबसे तो नहीं हुआ हूँ, थोड़ा सा जो मुझे फील हुआ है, तो दैट आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस, पॉइंट्स टिल नाउ? नहीं, चलो फिर देन आई थिंक विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। थैंक यू। Hare Krishna.